बेटा इन अ सेंटेंस इट इज नेसेसरी द सेंटेंस may be in a parallel form. बेटा एक सेंटेंस है, अगर उसमें सेंटेंस के अंदर वर्ब आ रहा है तो आगे जो वर्ड होगा वो भी क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक वर्ड जो है उसमें वर्ब आया फिर एडजेक्टिव आ गया फिर नाउन आ गया, ये सीक्वेंस आउट हो जाएगी। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की होगी, ठीक है, सीक्वेंस। नाउन है तो नाउन की सीक्वेंस है, प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन की सीक्वेंस। और अगर ये सीक्वेंस पर नहीं है तो इसको कहा जाएगा अनपैरेलल। क्या कहलाएगा, अनपैरेलल। अब सेंटेंस में जो एरर होगा वो इस तरह से होगा कि भाई वर्ब होगा फिर आगे वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, तो वो सीक्वेंस क्या हो गया, आउट हो गया। यानी कि दो वर्ड क्या है भाई, वर्ब है, और तीसरा वाला वर्ड जो वो वर्ब की जगह क्या है, नाउन है। या फिर टू इन्फिनेटिव आ गया, टू इन्फिनेटिव की सीक्वेंस चल रही, अब उस टू इन्फिनेटिव की जगह क्या आ गया भाई, जेरंड आ गया। टू इन्फिनेटिव की जगह क्या आ गया, जेरंड आ गया, तो ये सीक्वेंस क्या हो गई इसकी, आउट हो गई, ये अनपैरेलल हो गया। तो एरर क्या होगा सेंटेंस के अंदर, एरर जो है वो जो मिसमैच कर रहा होगा वो एरर है, उसी में एरर है। मिसाल के तौर पर सेंटेंस है ठीक है भाई क्लास, यहां पर सेंटेंस है कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, प्लेइंग फुटबॉल एंड टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। After like, here we can see ing form. This is a verb, this is the ing form. This is called gerund, this is called gerund. I like reading books, after like there is a gerund form. Playing football, this is also a gerund. And to visit different places, and to visit, this is a to infinitive. So the sequence is gerund plus gerund then to infinitive. तो सीक्वेंस क्या आउट हो गया, एरर कहां पर मौजूद है, टू विजिट, होना क्या चाहिए था, आई लाइक रीडिंग बुक्स, प्लेइंग फुटबॉल एंड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। गॉट इट, ये सीक्वेंस क्या है भाई, जेरंड की चल रही है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, प्लेइंग फुटबॉल एंड टू विजिट डिफरेंट एंड टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। So to visit in the error in the word in the to infinitive. So I like reading books, playing football and visiting different places.
Okay, so I want to become a doctor to help the poor and earning money. The sequence is to infinitive. To become, to help, okay, and earning, this is the gerund. एरर कहां पर मौजूद है? अर्निंग में तो क्या होगा? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर टू हेल्प द पुअर एंड टू अर्न मनी. गॉट इट? Okay, so she is intelligent, brave, and cleverest. So, beta, here we can see intelligent is a intelligent is an adjective, and this is a positive degree. Brave is also a positive degree, and cleverest is a superlative degree. So, दो पॉजिटिव डिग्री आ गई और लास्ट में क्या है? तो होना क्या चाहिए कि शी इज इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड क्लेवर. क्लेवरेस्ट नो, क्लेवर. He is hardworking, talented, and responsible person. Yes. Any other? Beta, in the sentence, hardworking, this is an adjective. Hardworking is an adjective. Talented is also adjective, and responsible is also adjective. So in the sentence there is no error. इस सेंटेंस में एरर नहीं. हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है, टैलेंटेड भी एडजेक्टिव है, एंड रिस्पॉन्सिबल भी एडजेक्टिव है.
Done. Identify whether or not the sentences have parallel structure. Light off. Okay. Clear है? Okay, identify whether or not the sentences have parallel structure. The first sentence is they stopped at the beach park, comma, the mall and the office. Yes. Is there any error here? Okay. They stopped at the beach park, the mall and the office. After stopped, we can see the preposition at and then the beach park. This is a noun. The mall. This is also a noun. And the office. This is also a noun. Okay. The next one is this month I have to write a thesis, do a report, do a book report and a poem. Okay, any error here? Yes. This month I have to write a thesis, do a report book and a poem. Middle class, we can see here this month I have to write. Write is a verb. I have to write a thesis. After have to, this is a verb. And then do a report, do a book report. Do is also a verb. And a poem. And a poem. अब देखो and a poem. थीसिस से पहले क्या है भाई? वर्ब है. थीसिस से पहले वर्ब है राइट. बुक रिपोर्ट से पहले एक वर्ब है क्या? डू. लेकिन पोएम से पहले वर्ब नहीं है, डायरेक्ट नाउन आ गया, तो ये सीक्वेंस आउट है. क्या करेंगे? दिस मंथ आई हैव टू राइट अ थीसिस, डू अ बुक रिपोर्ट एंड राइट अ पोएम. ठीक है, यहां पर भी पोएम से पहले क्या आएगा? एक वर्ब आ जाएगा, राइट अ पोएम. तो एरर कहां पर मौजूद है? आ पोएम में. Achieving a postgraduate degree is neither cheap nor will it be easy. Achieving a postgraduate degree is neither cheap nor will it be easy. Class, after here we can see degree is neither cheap nor will it be. So here this is the error. Nor easy. The sentence will be achieving a postgraduate degree is neither cheap nor easy. Okay? Nor easy. Nor will it be easy. No, nor easy. They need to buy potatoes, apples and cherries in the market.
Yes. Buy potatoes, apples and cherries in the market. In the sentence there is no error. Okay, ये भी sentence छोड़ो, आगे चलो. There are as many chairs as there are spectators. There are as many chairs as there are spectators. Many chairs as there are spectators. So in the sentence there is no error. Tomorrow I want to be watching movie and eat lunch with Tanya. I want to be watching movie and eat lunch. I want to watch movie and eat lunch with Tanya. Okay, I want to be watching नहीं होगा. I want to क्या होगा भाई? I want to. Okay, tomorrow I want to watch movie and eat lunch with Tanya. After want to, first form of verb comes. First form of verb comes after want to. After like to, feel like to, after hate to. Okay, so after want to be used first form of verb, not be plus ing form. So I want to watch movie and eat lunch. Yes, you. Where? I want to watch movie and to eat lunch with Tanya. This is correct. And to eat lunch with Tanya. That play we read for audience was really short, concise, and didn't make any sense. Yes, that play we read for audience was really short, concise, and didn't make any sense. Class, here we can see short, then concise, and didn't make any sense. No, short है क्या? फिर उसके बाद क्या आ गया भाई? Short क्या है भाई? Adjective, concise adjective आ गया. अब फिर क्या आ गया? ये एक वर्ड के बाद, ये क्या शॉर्ट और कॉन्साइज क्या है? ये दोनों एडजेक्टिव यानी कि वर्ड है, लेकिन फिर एंड के बाद क्या आ गया? पूरा एक क्लॉज आ गया. तो फिर होना क्या चाहिए? डिडंट मेक एनी सेंस की जगह नो सेंस. ठीक है ना, या सेंसलेस. डिडंट मेक एनी सेंस की जगह क्या हो जाएगा? नो सेंस. ठीक है, तो यहां पर भी ये होगा कि शॉर्ट, कॉमा, कॉन्साइज एंड नो सेंस. डिडंट मेक एनी सेंस ये गलत हो जाएगा. Okay, Martha likes reading the classic novels and to listen to radio. Martha likes reading the classic novels and to listen to radio. And listening. Likes reading the classic novels and to listen नहीं, बल्कि listening. क्योंकि likes के बाद देखें क्या है? gerund है. Likes reading, तो फिर and के बाद भी क्या होगा? to listen की जगह listening. क्योंकि पहले में जब gerund है तो अगला भी क्या होगा? gerund होगा. ये नहीं होगा कि एक gerund में और एक infinitive में आएगा. और likes के बाद क्या यूज करेंगे? gerund यूज करेंगे. Martha likes reading the classic novels and listening to radio. Okay. इस सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. सेंटेंस नंबर 10. Okay, the whole wheat pasta is better than enriched wheat pasta. The whole wheat pasta is better than enriched wheat pasta. Better wheat pasta, before wheat pasta in the both sentences, whole and enriched. Okay, so the whole wheat pasta is better than the enriched wheat pasta. The enriched wheat pasta. So enriched, before enriched, the article the will come here. He was handsome, brave and accommodating. Okay, he was handsome, brave and accommodating.
Yes. बेटा handsome, brave and accommodating thrice are adjectives. Okay. Accommodating, this is also an adjective. अब होता है क्या है, जैसे हार्ड वर्किंग को देख के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हार्ड वर्किंग आईएनजी फॉर्म आ गई तो पता नहीं ये हार्ड वर्किंग क्या है ये। तो वर्क हार्ड जो ना, वर्क जो है वो वर्क और हार्ड में वर्क वर्ब होता है और हार्ड एडवर्ब होता है, लेकिन अगर हार्ड वर्किंग साथ में लिखा हुआ हार्ड वर्किंग तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, सो हार्ड वर्किंग इज एन एडजेक्टिव। सो इन द सेम वे अकोमोडेटिंग इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। और टिंग की जगह यहाँ पर शन हो जाएगा ना ये, फिर ये नाउन हो जाएगा। अनपैरेलल कैसे होता, ही वाज हैंडसम, ब्रेव एंड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन दिस इज द नाउन एंड अकोमोडेटिंग दिस इज एन एडजेक्टिव। I love reading books, writing stories and to learn new languages. And learning new languages. Okay? The same sentence, she enjoyed, and after enjoy, gerund form and gerund comes after enjoy. I enjoy playing cricket. I enjoy watching movies. So she enjoys hiking, swimming, and to ride horses. Riding horses. Okay, the company will provide training, support. Training, company will provide training. This is a noun. Support, noun. And employs with benefits. Training, support. क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज विद बेनिफिट नो, ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज। द न्यू पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। The new policy aims to increase productivity, reduce cost, and improve customer satisfaction. And improve. Okay, no problem, no issue. To increase productivity, reduce cost and improve customer satisfaction. Improving की जगह यहाँ पर improve कर दें। ये भी हो सकता है to increase productivity, to reduce cost, no need to write again to increase productivity, reduce cost and improve customer satisfaction. I am good at playing guitar, singing and to write songs and writing songs. The course covers history, theory, and how to design buildings. The course covers history, theory, and how to design buildings. The course covers history, theory, and design buildings. How to will be removed. The team is responsible for marketing, sales and manage for marketing, sales अलग ही है, for marketing, sales and बेटा आफ्टर फॉर मार्केटिंग सेल्स, तो मार्केटिंग आ गया भाई, फिर सेल्स आ गया और टू मैनेज आ गया, तो यहाँ पर टू मैनेज की जगह क्या हो जाएगा, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप। The city is known for its beautiful beaches, vibrant
nightlife and having a rich history. After for its the city is known for its. After its we can see beautiful adjectives, which is a noun. Vibrant, this is an adjective, and nightlife is a noun. And having a rich history. So having, this is extra word, and having will be removed from the sentence. The correct sentence will be the city is known for its beautiful beaches, vibrant nightlife and a rich history. आ भी नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट लिखेंगे एंड रिच हिस्ट्री, हैविंग आ हट जाएगा. The job requires strong communication skills, problem solving, and to work under pressure. Strong communication skills, ये एक strong requires के बाद क्या लिखा है? Strong communication skills. Strong is an adjective. Problem solving and to work under pressure. No, and ability to work under pressure. And ability to work under pressure. तो to work under pressure ये गलत हो गया, यहाँ पर ये एरर है. और उसके अंदर ये काबिलियत हो कि वो अंडर प्रेशर क्या कर सके, काम कर सके. बस आपने तो एरर बताना है ना. मैं तो सिर्फ सेंटेंस को सही भी करके बता रहा हूं, लेकिन आपने सिर्फ क्या बताना है कि एरर कहां पर मौजूद है. टू वर्क अंडर प्रेशर, ये टू वर्क अंडर प्रेशर अंडरलाइन होगा, आप बोलोगे इसमें मसला है, एरर यहां पर मौजूद है. ओके, द प्रोफेसर emphasized the importance of research, critical thinking, and to write clearly. Critical thinking and to write clearly, not, and clear writing. Clear writing. To write clearly, no. Clear writing. जैसे critical thinking है तो क्या हो जाएगा? Clear writing. Research, critical thinking and clear writing. The company values innovation, teamwork, and employees who are motivated. The company values innovation, teamwork, and motivated employees. या फिर motivational employees, not employees who are motivated. Motivational employees. Yes. 18. The course cover history, theory, and design building. How to will be removed from the sentence. Class, I am looking forward to traveling, trying new foods, and to meet new people. After forward to, but here we can see to. Forward to, and sometimes we understand after to we use first form of verb. But forward to, here to is not infinitive. To is a preposition. To is a infinitive and preposition both. To preposition भी और infinitive भी. अगर to infinitive होता तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और to preposition अगर है तो उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म आएगी. यहाँ पर forward क्या है भाई? Looking forward to एक phrasal verb है. क्या है ये? ये एक phrasal verb है जिसके मतलब होता है मुंतजिर होना. Look forward to in the sentence, in the phrasal verb, look is a verb, forward is an adverb, and to is a preposition. ठीक है. phrasal verb क्या होता है भाई? जब किसी verb के साथ preposition या adverb आ जाए और meaning क्या हो जाए? चेंज हो जाए. What is the meaning of look? देखना, see. But when we add for, so it meanings change. meaning क्या हो जाती है भाई? चेंज हो जाती है. अब look for के मतलब क्या है? तलाश करना. look के मतलब देखना. जब preposition after आ गया तो क्या मतलब है? देखभाल करना.
लुक के मतलब देखना, जब इसके साथ इनटू आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, तो इसके मतलब गौर करना, तहकीक करना, तफ्तीश करना। एप्लीकेशन में लिखते थे ना लास्ट में, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू दिस मैटर, पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस मैटर। ओके, तो ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। सेम एज इट इज यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब मुंतजिर होना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग, ट्राइंग न्यू फूड एंड मीटिंग न्यू पीपल। The book is about a journey of self-discovery, love, and finding one's purpose in life. And the book is about a journey of self-discovery, love, and purpose. Purpose in life. Finding one's will be top. Self-discovery, love, and purpose in life. The new employee is responsible for data entry, customer service, and to update the website. अगर सिर्फ टू हटा देंगे और लिखते हैं कि अपडेट द वेबसाइट, तो क्या हुआ? फॉर डाटा एंट्री, कस्टमर सर्विस एंड अपडेट। अपडेट तो वर्ब आ गया, ठीक है। तो ये क्या है भाई? कस्टमर सर्विस क्या वर्ब है, डाटा एंट्री क्या ये वर्ब है, सर्विस वर्ब है, कस्टमर पहले आया, एंट्री वर्ब है, डाटा पहले आया। तो यहां भी क्या लिखोगे? वेबसाइट अपडेटिंग, ठीक है ना, वेबसाइट अपडेटिंग एंड वेबसाइट अपडेटिंग। देखो बेटा यहां पर देखो क्या है, वेबसाइट अपडेट से, ठीक है ठीक है, वेबसाइट अपडेट एंड टू वेबसाइट अपडेट, टू अपडेट द वेबसाइट नहीं होगा, वेबसाइट अपडेट एंड वेबसाइट अपडेट। द सिटी ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ कल्चरल इवेंट्स, आउटडोर एक्टिविटीज एंड देयर आर मैनी रेस्टोरेंट्स to choose from. Yes, the city offers a variety of cultural events, outdoor activities, and beta only restaurant will come here. There are many and to choose from, ये सब हट जाएगा। The city offers a variety of cultural events, outdoor activities, and restaurants. There are many and to choose from, ये सब हट जाएंगे, and many restaurants. There are to choose from हट जाएंगे। And रेस्टोरेंट्स या फिर एंड मैनी रेस्टोरेंट्स, बस मैनी रेस्टोरेंट्स है या फिर रेस्टोरेंट है, लेकिन ये देयर आर और टू चूज फ्रॉम ये सारे हट जाएंगे। द कोर्स विल कवर टॉपिक्स सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड हाउ टू मैनेज अ टीम। मार्केटिंग, फाइनेंस एंड टीम मैनेजमेंट। द कोर्स will cover topics such as marketing, finance and team management. ठीक है, मार्केटिंग, फाइनेंस बोथ आर नाउन, ओके। तो टीम मैनेजमेंट जब लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। द टीम इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस एंड टू एक्सपेंड देयर मार्केट शेयर। बेटा अ न्यू प्रोडक्ट, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अ न्यू प्रोडक्ट क्या है भाई? यहां पर देखो कि न्यू क्या है? एडजेक्टिव है, क्या है ये? देखेंगे कि डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। सो हियर अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू इज एन एडजेक्टिव, प्रोडक्ट इज अ नाउन, ठीक है। इंप्रूविंग कस्टमर सर्विसेज एंड टू एक्सपेंड देयर मार्केटिंग शेयर।
and expanding their market share. The job requires working independently, problem solving, and deadlines meeting. The company is committed to providing high quality products, excellent customer services, and to make a positive impact on the community. Providing high quality products, high quality, high adjective products, excellent adjective. तो यहां पर भी क्या करोगे? And positive impact on the community. Providing high quality products, excellent customer service, and positive impact on the community. And to make हट जाएगा. The professor is known for his expertise in artificial intelligence, machine learning, and developing new algorithm. बल्कि इसको इस तरह करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अगर डेवलपिंग कर दोगे ना तो ये वर्ब आ जाएगा. तो यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा क्योंकि इनके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ब नहीं है ना. मशीन लर्निंग एंड न्यू एल्गोरिथम डेवलपमेंट, ये करो. न्यू एल्गोरिथम डेवलपमेंट. Choose the correct option. Which one? 13. 30. The job requires working independently, problem solving, and deadlines meeting. Deadlines meeting. Deadlines meeting. देखो, choose the correct option. In this climate, farmers grow stone fruits such as Which one is D? क्योंकि पहले वाले में एक पीस तो नहीं होगा ना, पीच, एप्रिकॉट एंड प्लम. तो थर्ड वाले में दो में प्लूरल है और एक में सिंगुलर है, तो तीनों सिक्स में होंगे ना, प्लूरल होंगे. पीचेस, एप्रिकॉट्स एंड प्लम्स. They like feeding and brushing the dog, but they don't like walking it. After like, ing form, gerund form will come. They don't like walking it. The legislation neither resolve the financial crisis nor helps, because after neither there is the first form of verb
So after nor has consumer. The library offers not only books to read but also computers to use. One needs nothing else other than books, having friends and food. Okay, Lincoln, Abraham Lincoln, boy, he was the president of America. Lincoln was born in Kentucky and in dash in Illinois before he was elected president, and lived, was living, no, रह रहा था, नहीं रहता था, पास की बात है ना. Was born in Kentucky and lived in Illinois before he was elected president. Okay students, ऐसे बता दें. Students must conduct their laboratory experiments. क्लास कौन सी? Students must conduct their laboratory experiments accurately and option है in a safe manner, safely या with safety. वैसे तो तीनों सही है भाई. इन अ सेफ मैनर भी कह सकते हैं, सेफली भी कह सकते हैं और विथ सेफ्टी भी कह सकते हैं. लेकिन क्योंकि एंड से पहले जो वर्ड आया हुआ क्या है, वो एडवर्ब है. एक्यूरेटली क्या है? एडवर्ब है. तो इसी वजह से एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो एडवर्ब है एक्यूरेटली, तो एंड के बाद भी क्या आएगा? सेफली यानी कि एडवर्ब आएगा. और अगर एक्सपेरिमेंट्स के बाद लिखा होता इन अ एक्यूरेट मैनर, तो फिर क्या होता? एंड इन अ सेफ मैनर. लाइट ऑन कर. Okay, the next one is, it takes 1 hour or more to drive the city depending on weather and dash. How much traffic there is? If traffic is heavy or traffic. It takes 1 hour or more to drive to the city depending on weather and dash. How much traffic there is? If traffic is heavy या फिर only traffic, क्योंकि weather है तो आगे भी क्या आएगा? For the blood test to be accurate, you must not eat or dash after midnight. Be drinking, to drink or only drink, because we know after must we use first form of verb, not to infinitive, not gerund. Running, walking and dash are my favorite forms of exercise. Dancing, to dance या to go dancing. ठीक है, running, walking and dancing are my favorite forms of exercise. Whereas sentences will be given, and from the sentence you will identify the error. सेंटेंस आ गया भाई, आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये एरर है. ठीक है, जेरेंड चल रहा और आगे क्या आ गया? इन्फिनेटिव आ गया. इन्फिनेटिव फिर क्या आ गया? जेरेंड आ गया. ठीक है, एडजेक्टिव की सीक्वेंस चल रही थी, अचानक क्या आ गया? नाउन आ गया. नाउन की सीक्वेंस चल रही थी, क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया. ठीक है, तो सीक्वेंस पे चलेंगे. अगर कोई सीक्वेंस से आउट हो गया तो फिर इसका मतलब वो क्या हो गया? वो मिस्टेक है, वहां पर वो सेंटेंस क्या है उसमें अनपैरेलल हो गया. व्हाट इट?
अभी बताया भी था लास्ट टाइम आई थिंक कि आपने देखा होगा एमडी गेट का पेपर जो है हुआ है अभी लास्ट संडे को, देखा सबने पेपर, इंग्लिश का पेपर देखिएगा, उसके अंदर जो है सिमिली आ गया। याद करें सिमिली फर्स्ट या सेकंड में आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली पढ़ा था, ठीक है। अभी सेकंड में ना आप लोग, तो फर्स्ट में तो आप लोगों ने पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ाया होगा, सर ने बताया होगा सिमिली के हवाले से। तो याद करें सिमिली क्या है भाई, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एक लिखा हुआ था कि इसमें बताएं कि इन ऑप्शंस में से सिमिली क्या है, इन ऑप्शंस में से सिमिली जो है वो बताएं क्या है। तो 4 ऑप्शन सेंटेंसेस से 4 ऑप्शन से, तो एक में लाइक लिखा हुआ था, लाइक करके कंपैरिजन हो रहा था, तो हमें समझ में आ गया कि लाइक और एज वाला जो होता है वो सिमिली है। तो एक इस मर्तबा ये आया था, हो सकता है कि अगली मर्तबा कोई दूसरी फिगर ऑफ स्पीच दे दें, तो फिगर ऑफ स्पीच को एक दफा दोबारा आप लोग उसको देख लीजिएगा। जैसे मैं अगर पूछ लेता हूँ कि मेटाफर क्या है, शाबाश, विदाउट लाइक एंड एज। पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन जी बेटा नहीं, ह्यूमन क्वालिटी को किसी ऑब्जेक्ट और किसी आइडियाज में शो करने से, ठीक है, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि द सन इज स्माइलिंग, स्माइलिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, द सन इज स्माइलिंग। क्लास 9 में पोएम पढ़कर आए हो द डैफोडिल्स, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा नरगिस के फूल के बारे में कि दे वर डांसिंग एंड फ्लटरिंग इन द ब्रीज, कि नरगिस के फूल झूम रहे थे और नाच रहे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो डांसिंग एंड फ्लटरिंग बोथ आर द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन, किसमें शो कर दिया, एक नरगिस के फूल में। क्या है ये, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। इसी तरह से एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। और जो आप कह रहे थे ना अभी वो हाइपरबोले, हाइपरबोले क्या, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है, बढ़ा चढ़ाकर जिस सेंटेंस को पेश किया जाता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा ना कि आई सॉ 10,000 इन अ ग्लैंस, नरगिस के फूल के बारे में कहा। 9th क्लास में जो पोएम है ना डैफोडिल्स, उसमें क्या कहा कि आई सॉ 10,000 इन अ ग्लैंस, कि एक झलक में मैंने 10,000 नरगिस के फूल देख लिए। सेकेंड ईयर की पुरानी बुक थी, अब तो बुक चेंज हो गई साल, पुरानी जो बुक थी उसमें एक पोएम है, उसका नाम है सॉलिटरी रीपर। एक लड़की जो ना फसल काट रही है खेत में, और वो लड़की गाना भी गा रही साथ में। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के घर जा रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एक शायर है जिनकी पोएम आप लोगों ने फर्स्ट में भी पढ़ी थी, है ना, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, लूसी गिरे। तो सॉलिटरी रीपर जो पुरानी बुक में थी, उसमें क्या था कि लड़की जो ना वो खेत में फसल जो है वो काट रही है, और विलियम वर्ड्सवर्थ का अपनी सिस्टर के घर जाना हो रहा है, जो रहती है स्कॉटलैंड में और ये रहते हैं इंग्लैंड में। गुजर रहे थे एक खेत के पास से, और उस खेत के पास से जब वो जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर, तो वहां पर एक लड़की जो है वो फसल काट रही है, गाना गा रही, ठीक है। और लड़की की आवाज बड़ी खूबसूरत थी, निटिंगल बुलबुल के साथ, और कुकू बर्ड और कोयल से लड़की की आवाज को कंपेयर भी किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और फिर उस लड़की की आवाज को कह रहे कि उस लड़की की आवाज जो है वो समुद्र की साइलेंस को जो है ना, खामोशी को तोड़ते हुए कहाँ जा रही है आवाज, समुद्र के पार एक जगह जिसका नाम है हेब्रिड्स, वहां तक आवाज जा रही है। समझ में आ रही है क्या किया, ये बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। इस लड़की की आवाज क्या है, मैं ना, आई हैव टोल्ड यू 1 मिलियन टाइम्स, मैं तुम्हें 1 लाख मरतबा ये कह चुका हूँ, मैं तुम्हें 1,000 दफा समझा चुका हूँ। तो क्या 1,000 दफा समझाते हैं, ये 1 लाख दफा कहते हैं। क्या किया, ये बड़ा चढ़ाकर पेश किया, एग्जैजरेट किया, है ना, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। सेंटेंस के अंदर एक इफेक्ट डालने के लिए, एक हाई इफेक्ट डालने के लिए, हाइटन इफेक्ट डालने के लिए जो है क्या करते हैं, हाइपरबोलिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे, तो इसको भी आप देख लेना। इसी तरह से पैसिव वॉइस का सेंटेंस आया, एक सेंटेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट का, था बहुत ही आसान, और फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 ऑप्शन नीचे, और बताओ कि इसमें से पैसिव वॉइस क्या है। ऑप्शन भी किस तरह से कि विल बी, थर्ड फॉर्म एक ऑप्शन, एक में इज हमार थर्ड फॉर्म, एक में इज और हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो भाई सिंपल है, विल है तो क्या होगा, विल भी होगा, है ना, इतना आसान दे दिया। तो समझ लें कि इस बार का एमडी गेट का पेपर इंग्लिश का बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल नहीं, आसान है।